So, today among all of you, I introduce this Hare Krishna Mahamantra, which is the Yuga Dharma and the purpose of all and the way to develop. Just in the previous leadership class, we discussed that what is the way, what is the right way of leadership is to act with love. And how can we act with love? When we have love towards Krishna. And how that love can be achieved? Only by chanting of the Hare Krishna Mahamantra. Golokera Prema Dhana Harinama Sankirtana. The Hare Krishna Mahamantra is the way by which the churning of the heart happens, and the dormant love and the love which is being resided within the core of the heart towards Krishna is awakened only by simply by chanting the Hare Krishna Mahamantra. So, my dear students, we all should try to chant this Hare Krishna Maha Mantra. Take this mantra as one's life and soul, and you'll see that your life and your heart, your way of thinking, each and everything will be completely transformed within no time. Just have faith in Krishna, love everyone, and chant the holy name of Krishna, and then our path back to Godhead is very easy. This Hare Krishna movement is simple but not easy. What does that mean? It's simple. You have to chant Hare Krishna. You have to hear Bhagavad Gita. Is chanting and hearing difficult? No, it's easy. It's simple. But easy, not easy. What does that mean, not easy? We have to do it regularly on a daily basis. So that can be only done when we have love. Because once we have love, then nobody needs to teach us. Just like when we have hunger, does anyone tell us, oh, eat beta? Uh, you have to eat. Why? Because you are feeling hungry. No, when we are feeling hungry, we are searching. Where is food? Where is food? Where is cooker? Where is all the supplies? I just want food because I am hungry. Because the need is there. Similarly, when we have love for Krishna, then the practices which are being told for us in order to the sadhana, chanting of Hare Krishna Mahamantra, hearing Shrimad Bhagavad Gita, Shrimad Bhagavatam will become very easy for all of us. Why? Because we love Krishna. That becomes our need. I was just like a fish cannot live without water. Similarly, a devotee cannot live up without hearing and chanting about Krishna. That will happen. So, with folded hands, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimiraandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurve Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityanand Shri Advaita Gadadhar Shivasati Shri Gaura Bhakta Vrind. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. So just now I chanted this Om Namo Bhagavate Vasudevaya. What does that mean? Om is basically a impersonal representation of Supreme Personality of Godhead. So Om is the impersonal representation. Just I told you that absolute truth, परम सत्य के तीन पहलू हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान. तो ब्रह्म, तो भगवान कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम. ब्रह्म के आधार कौन है? भगवान स्वयं. तो ओम जो है ये भगवान का ही एक इम्पर्सनल एमिनेशन है. जैसे कि कोई गवर्नमेंट होती है तो उस प्रकार से. फिर नमो, नमो मीन्स आई ऑफर माय ओबियंसेस, आई बो डाउन. ओम नमो भगवते, भगवते मीन्स the Lord who is endowed or full in six opulences, all riches, all fame, all knowledge, all beauty, all renunciation, all wealth, right? So these are six opulences which is in full, that is Bhagavate. And Vasudevaya, Vasudev, Vas means to live, Vasu means to live, and Dev means Lord. So that Lord
which lives in everyone's heart, known as Vasudeva. Or one more meaning, the son of Vasudeva is Vasudeva. Just like Janak Maharaj Putri is Janaki. Similarly, Vasudev's son is Vasudeva. That is Lord Shri Krishna. So Om Namo Bhagavate Vasudevaya means that we salute the government first of all. That is the Om, that is the the Brahm Tej, the impersonal representation of Supreme Personality of Godhead, and then we salute to the post holder, that is Bhagavate. And what is his name? Vasudevaya. That is Supreme Krishna. Just like there is a government and there is a particular post of PM and Narendra Modi is the PM. Right? So Om Namo Bhagavate Vasudeva. It's like that. So Indian government, PM is the post and Narendra Modi is the Prime Minister. Similarly, Gyanis, who are the Gyanis, they focus on the Om. Means they focus on the Nirakar aspect of the Supreme Personality of Godhead. वो कहते हैं भगवान निराकार है, भगवान के निराकार पक्ष पे वह ध्यान करते हैं. योगी जो होते हैं वो भगवान के ऐश्वर्यों पे ध्यान करते हैं, मतलब परमात्मा भगवान के सुंदर रूप को ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जब योगिनः. जो योगी जन होते हैं अंतर ध्यान करते हैं, भगवान को हृदय परमात्मा के रूप उनको देखते हैं. और जो भक्त होते हैं वासुदेवाय कृष्ण, उनके लिए जो भक्त होते हैं भगवान के भगवान वाले फीचर, परम सत्य के भगवान वाले एस्पेक्ट पे वह सेवा करते हैं. दिस इज कॉल्ड, दैट इज इट, दिस इज ओम नमो भगवते वासुदेवाय. द मीनिंग ऑफ ओम नमो भगवते वासुदेवाय. बिकॉज many must have question, what is this Om Namo Bhagavate Vasudevaya? Why are we doing that? Because in order for remembrance and to beg auspiciousness, because without Lord's support we cannot do anything. So in the last session, prior to not Saturday session, last week we discussed about the third chapter, where we saw that Arjuna was totally confused. What should I do? Should I take renunciation? Should I do tyag? Or should I act? What should I do? And then Krishna said कि भगवान ने उनको सीधे सीधे बोला कि तुमको अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी करनी चाहिए. तुम एक क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय के कर्तव्य करो. क्यों? क्योंकि अगर तुम अपरिपक्व अवस्था में तुम वैराग ले लेते हो तो क्या होगा? तुम वहां पे वैराग ले लोगे, कार्य नहीं करोगे, तो वहां पे भी तुम मिथ्याचार से उचित, वहां पे तुम प्रिटेंडर की बात ही रहोगे और किसी को नहीं, वो खुद को ही तुम अपना नुकसान करोगे, अपने आप को तुम मूर्ख बना रहे हो, बनाओगे. इस प्रकार से वो बताते हैं. मिथ्याचार से उच्चते, वो मिथ्याचारी होता है जो समय से मतलब परिपक्व होने से पहले प्रीमेच्योरली अगर कोई वैराग ले लेता है तो वही भगवान ने कहा कि तुम्हें अपने कर्तव्य करने चाहिए, वो भी कैसे? डिटैच्ड होकर कर्तव्य करना है. फॉर द सेक ऑफ डूइंग माई ड्यूटी आई हैव टू डू माई ड्यूटी. In that mood you should work. Nishkam karma yoga. Krishna told about Nishkam karma yoga, that you should do your duty as a matter of offering to me. कुछ लोग होते हैं फ्रूट से आसक्त रहते हैं, उसके हिसाब से वो कार्य करते हैं. वो कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि उनको फ्रूट्स चाहिए. लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम कोई कार्य करो लेकिन उसके फल से आसक्त ना हो. You should not be attached towards the fruit of your activity, of your action, rather than you should offer the fruits to me. That Krishna told. And then at the last of and he told that those who follow, जो मेरी बातों को पालन करते हैं वह कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं, और जो नहीं पालन करते हैं उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है, वह पूरी तरह उनकी विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है और जीवन में भी वह सुख परम गति की प्राप्ति नहीं कर पाते. इस प्रकार से भगवान वहां पे भी बताते हैं. और फिर भगवान बताते हैं कि इस जगत में बंधन का कारण क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ बंधन इन दिस वर्ल्ड? तो क्या बताते हैं इस जगत में बंधन का कारण क्या है? तो कहते हैं लस्ट. जो लस्ट है, जो आत्मा का शत्रु है. हाँ, शत्रु क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान से हमको हमारे लक्ष्य से दूर ले जा रहा है. हाँ, जो भक्ति का पथ होता है वो हमको कहाँ पे ले जाता है? वो हमको प्रोग्रेसिवली उच्चतर लोगों की तरफ ले जाता है, लेकिन लस्ट हमको निचतर योनि यानी कि पशु योनि है उससे नीचे योनि में हमको ले जाता है. तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि जो लस्ट है, ये जो काम है, ये हमको भव बंधन में फंसाता है.
तो इस लस्ट को कैसे हराया जा सकता है? बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मतलब कृष्ण भावनामृत के द्वारा, हाँ, विचारशील होके आध्यात्मिकता का अनुशीलन करना, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करना, उसके माध्यम से लस्ट को हराया जा सकता है, उसको कॉन्कर किया जा सकता, कर्ब किया जा सकता है। तो अब जब भगवान ने बोला कि बाय स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वी कैन कॉन्कर lust, so now what is that spiritual intelligence? That is this fourth chapter. I hope you are able to understand the link between third chapter and fourth chapter, that in the end of the third chapter Krishna told that lust basically causes material bondage, and in order to conquer lust you need to have deliberate spiritual intelligence. Now what is that spiritual intelligence? That is this fourth chapter, and this chapter is known as transcendental knowledge. So Krishna, that is why, presents transcendental knowledge by which कृष्ण यहाँ पे दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे, जिसके माध्यम से व्यक्ति ये लस्ट के, काम के बंधन से वह मुक्त हो सकता है, उससे बच सकता है। और यहाँ पे भगवान, जैसे कि पिछले अध्याय में भगवान ने निष्काम कर्म के बारे में बताया, और निष्काम कर्म मतलब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य को पालन करता है, डिटैच्ड होकर, उसको आसक्ति नहीं अपने कर्तव्य से, उसको फ्रूट्स को एंजॉय नहीं करना है, जो इस प्रकार से करता है तो वह एलिजिबल होता है ज्ञान के लिए। तो निष्काम कर्म का लक्ष्य क्या है? ज्ञान। फिर ज्ञान के बाद अष्टांग, फिर उसके बाद भक्ति। जरूरी नहीं है इससे पूरे प्रोसेस से जाए, जो डायरेक्टली भक्ति योग में भी स्विच किया जा सकता है, राइट। इसका उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग है, उसमें 100 फ्लोर्स हैं, तो एक तरीका है पैदल पैदल सीढ़ियों से चलो, और दूसरा है लिफ्ट वाला। तो जो कर्म, ज्ञान और अष्टांग है, ये कौन सा पथ है? सीढ़ी वाला। और जो भक्ति मार्ग है कौन सा है? लिफ्ट वाला। हम कौन सा सिलेक्ट करते हैं? हमारे ऊपर है, हम कौन सा करेंगे? लिफ्ट वाला, क्योंकि हम कलयुगाइट्स हैं। जैसे डेलाइट्स होते हैं, आईआईटियंस होते हैं, जीएलियंस होते हैं, उसी प्रकार से हम कलयुगाइट्स हैं। आलसी हैं, प्रमाथी हैं, एक से एक दुर्गुण हमारे अंदर भरे पड़े हैं। तो वी शुड सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट पाथ इन विच वी अचीव द सेम गोल एज अचीव्ड बाय अदर्स। बाकी जो अन्य पथ होते हैं, इसमें अगर व्यक्ति अपने स्थान से गिर जाता है या फिर कुछ डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन भक्ति के पथ में जरा सा भी कोई एडवांस कर लेता है, वो कभी नष्ट नहीं होता, और भगवान उसको सबसे बड़े खतरे से बचाते हैं। तो ये हमने देखा था। तो यहाँ पे तो इस चैप्टर में भगवान यहाँ पे ज्ञान, यानी कि दिव्य ज्ञान के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ में दिव्य ज्ञान के गुणगान भी करेंगे। तो वह शुरुआत किस प्रकार से करते हैं कि वह इस ज्ञान की परंपरा को बताते हैं। तो शुरुआत इस प्रकार से करते, इमं विश्वस्यते योगम प्रोक्तावन अहम अव्ययम। तो क्या बताते हैं भगवान कि मैं ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूर्य भगवान को। और उनका नाम क्या है? सूर्य भगवान का नाम विवस्वान। फिर विवस्वान मनवे प्राहा, फिर ये विवस्वान ने ज्ञान किसको दिया? आहा मतलब बोला, किसको बोला? मनु। मनु कौन है? फादर ऑफ मैनकाइंड। ये मैन शब्द मनु से ही आया है। फिर इक्ष्वाकु ब्रवित, और मनु ने ये ज्ञान किसको दिया? इक्ष्वाकु को। इस तरह से परंपरा। तो ये जो राजा होते हैं, ये कौन होते हैं? ये राज ऋषि होते हैं। और राज ऋषियों को ज्ञान क्यों दिया जाता था? राज ऋषि का मतलब होता है कि ये ऋषि समान है, मतलब इनके जीवन में आत्म संयम, वैराग, लॉयल्टी टुवर्ड्स द सुप्रीम लॉर्ड एंड द सिटीजन्स, राइट, केयर टेकिंग वाली भावना, ये सब है। लेकिन साथ ही साथ में एक सेंट की तरह भी है, साथ साथ में एक एडमिनिस्ट्रेटिव गुण भी है उनके अंदर। तो इसीलिए उनको राज ऋषि कहा जाता है। और क्योंकि इनके पास पावर होती है, तो ये लोग कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करा सकते हैं, और जाहिर सी बात है उनको फॉलो ही करना पड़ेगा जो राज ऋषि बोल रहे हैं, क्योंकि वो राजा हैं, तो जो प्रजा है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान ने ये राज ऋषियों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। हालांकि ज्ञान सबके लिए है, लेकिन राज ऋषियों को मुख्य रूप से दिया जाता था। क्यों? ताकि वह आगे उसको इम्पार्ट कर जा सके, वही नॉलेज को, एजुकेशन को, डिवोशन को, कल्चर को वो आगे जाके बोल सके, ताकि जो मनुष्य लोग हैं अपने जीवन का ठीक तरह से इस्तेमाल कर सके। ये मुख्य उद्देश्य होता था जो कि बताया जाता है। तो और साथ ही साथ में ये परंपरा सिस्टम क्यों है? क्योंकि जब हमको ज्ञान चाहिए तो वो प्रामाणिक होना चाहिए।
if you want spiritual education, to get spiritual education, it should be from an authentic source. जैसे कि आप सब लोग ना कॉलेज सेलेक्ट किए, या फिर स्कूल सेलेक्ट किए, या फिर ट्यूशन भी सेलेक्ट किए, तो आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति या वो जगह ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथराइजेशन आपने चेक किया होगा, क्योंकि और तभी आजकल सोसाइटी में क्या हो रहा है कि कोई व्यक्ति ऑथेंटिसिटी को नहीं देखता है, और ऐसे किसी साधु, बाबा, इन सब के वह चक्कर में फंस जाता है, या सैनी साधु जो थोड़े बहुत ही ऐसे ऐसे हैं। और फिर क्या होता है कि उनके बहकावे में आके वह कुछ कर लेते हैं, और फिर उनको पता चलता है ये तो बहुत गलत आदमी है। और जब उनको ये पता चलता है कि ये तो गलत आदमी था, और वह उन पर विश्वास करके उसने मेरे को इतना बड़ा धोखा दिया, तो उनका भक्ति के पद से ही विश्वास उठ जाता है, क्योंकि उनका हृदय टूट जाता है ना। क्योंकि किसी ने किसी पे फेथ किया, और वो भी स्पिरिचुअलिटी टर्म्स में फेथ किया, और जब इस प्रकार का धोखा मिलता है तो लोगों का फेथ पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस कि हम लोग एक स्टेबल और ऑथराइज्ड पाथ को फॉलो करें, जो कि यहाँ पे कृष्ण हमको बताने जा रहे हैं, हमको बता रहे हैं कि परंपरा में ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए। जब हम परंपरा में ज्ञान को स्वीकार करते हैं, तो कोई व्यक्ति परंपरा में है, इसका मतलब क्या है कि जैसा भगवान ने बोला है, बिना कॉन्कॉक्ट करे, कॉन्कॉक्ट मतलब बिना मनोकल्पना करे, उसको एज इट इज प्रस्तुत कर देता है। जब उसको यथारूप प्रस्तुत कर देता है, वो प्रमाणिक प्रतिनिधि वो व्यक्ति होगा, लेकिन जब वह बोल रहा है तो वास्तव में भगवान ही उसके माध्यम से बोल रहे हैं। कस्मै येन विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनिये कृष्णाय तद्रूपिणः योगींद्राय आत्मनाथ भगवत राताय कारुणतस्य तत्शुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। तो क्या कहते हैं, कस्मै येन विभासितो अयम अतुलो ज्ञान प्रदीपा पुरा। भगवान ने ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में स्फुरित कर दिया। ब्रह्मा जी को किसी कोचिंग क्लास की जरूरत नहीं थी, ट्यूशन की जरूरत नहीं थी, सीधे हृदय में स्फुरित कर दिया। हाँ, फिर ब्रह्मा जी के रूप में ही ये ज्ञान भगवान ने नारद जी को दिया। फिर नारद जी के रूप में भगवान ने ये ज्ञान व्यास देव जी को दिया। व्यास देव जी के रूप में ये ज्ञान भगवान ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी के रूप में ही भगवान ने ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया। तो when this transcendental knowledge is transparently transmitted, then it brings transformation in the heart of the receiver. जब हम इस दिन ज्ञान को बिना किसी छेड़छाड़ के सामने वाले व्यक्ति को दान देते हैं इस ज्ञान का, तो उसके हृदय में परिवर्तन आता है, उसके हृदय में परिवर्तन आता है। अन्यथा हमने भगवत गीता की 800 से ज्यादा कमेंट्रीज थी, लेकिन वो सब धूल लग रही थी उसमें, लाइब्रेरीज में। लेकिन जब उस लाइब्रेरी में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जब भगवत गीता आई, तो लोग भक्त बनने लगे, डिवोटेड होने लगे, कृष्ण को अपना जीवन समर्पित कर दिए, बिकॉज इट इज बीइंग डिलीवर्ड इन द सेम वे एज कृष्णा टोल्ड टू अर्जुना, और कृष्णा टोल्ड इन द परंपरा। देयर आर 4 प्रमाणिक संप्रदाय हैं। भगवान ने ये ज्ञान 4 मुख्य लोगों को दिया, जिनसे एक एक संप्रदाय आई है। संप्रदाय मतलब लीनिएज, राइट। तो वो संप्रदाय क्या है, 4 संप्रदाय। सबसे पहले श्री संप्रदाय, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन नंबर पहला बता रहा हूँ। श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय मतलब भगवान ने सबसे पहले ज्ञान श्री लक्ष्मी जी को दिया। फिर लक्ष्मी जी से एक परंपरा आई, और उसके प्रमुख आचार्य कौन है, श्रीला रामानुजाचार्य। खासकर आप साउथ इंडिया जाएंगे तो आप श्रीपाद रामानुजाचार्य का नाम सुनेंगे। तो ये हो गया श्री संप्रदाय। फिर भगवान ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, तो ब्रह्मा जी से एक परंपरा आई, और उसके प्रमुख आचार्य कौन है, श्रीपाद माधवाचार्य जी। तो माधवाचार्य जी को ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया नारद जी को, फिर इससे माधवाचार्य जी का तो प्रमुख आचार्य। और इस्कॉन जो है, शिला प्रभुपाद जी जो है, वह भी उसी परंपरा में आते हैं। और फिर तीसरा संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। भगवान ने ज्ञान शिव जी को दिया, तो रुद्र संप्रदाय। और रुद्र संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन है, विष्णु स्वामी। और चौथा भगवान संकर्षण ने, भगवान ने ये ज्ञान किसको दिया,
4 कुमारों को दिया जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। इन 4 कुमारों को ज्ञान दिया, तो उनसे एक संप्रदाय है जिसको कहते हैं कुमार संप्रदाय, और उसके प्रमुख आचार्य कौन है? निम्बार्क स्वामी, निम्बार्क आचार्य। तो ये 4 प्रामाणिक संप्रदाय हैं। तो जब हम किसी प्रामाणिक व्यक्ति से, जैसा भगवान ने बोला है उसको जब कोई व्यक्ति एज इट इज प्रस्तुत करता है, तो हृदय में परिवर्तन आता है। ये स्वतः होगा ही होगा। और अगर हृदय में परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वह व्यक्ति हमको ज्ञान एज इट इज नहीं प्रस्तुत कर रहा है। मूलतः वह अपने आचरण से वह सब बता देते हैं। एक प्रामाणिक गुरु की पहचान अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो 2 चीजें उनके अंदर जरूर होंगी। पहला, उनको शास्त्रों का ज्ञान होगा, और दूसरा, वह जो बोल रहे होंगे वो अपने जीवन में पालन करने का भी प्रयास करते होंगे। देन दैट शोज कि ये व्यक्ति प्रामाणिक है। ही इज अ बोनाफाइड person, and I can take guidance instruction for him in order to advance in my spiritual life. And Srila Prabhupada is that personality, because I have personally seen the Srila Prabhupada books are crystal clear. उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। एम्बिग्यूटी मतलब ऐसे नहीं कि फंसा दिया जाए, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और ये भगवान के लिए हृदय में भक्ति उत्पन्न करता है, साथ ही साथ में ज्ञान पूरी तरह से पवित्र है। जैसे कि यहाँ पे रूम पे एक बल्ब जल रहा है, तो ये बल्ब जल रहा है, अब इससे पता है कि पीछे कोई एक कनेक्टेड है, पोल से कनेक्टेड है, फिर वो पोल किसी और पोल से कनेक्टेड है, फिर वो पोल किसी और पोल से कनेक्टेड है, और वो अंतर्गत जाके एक हाइड्रोलिक पावर स्टेशन से कनेक्टेड है, तब जाके जल रहा है। राइट? तो उसी प्रकार से अगर व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आ रहा है, तो कैसे आ रहा है? क्योंकि जो बोल रहा है वो परंपरा में हमको ज्ञान दे रहा है। वो भगवान का प्रतिनिधि बन के हमको इस प्रकार से ज्ञान प्रस्तुत कर रहा है। तो ये होती है परंपरा सिस्टम। तो भगवान इसी चीज को बता रहे हैं कि एवं परंपरा प्राप्त इमम राजेश्य विदु सकाले न महता योग नष्ट परंतरपः। तो भगवान इस चीज को बता रहे हैं कि परंपरा में इस ज्ञान को देना चाहिए, लेकिन समय के प्रभाव में ऐसा हुआ कि ये परंपरा टूट गई, और ये जो ज्ञान था ये अप्रकट हो गया। ऐसा क्यों होता है? ये ज्ञान अप्रकट कैसे हो गया? ये लॉस्ट कैसे हो गया? तो बताते हैं। देखिए, 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक होते हैं भक्त और दूसरे होते हैं असुर। डिवोटी, डीमंस, दोनों ही कमेंट्रीज लिखते हैं गीता पे। डीमंस भी कमेंट्रीज लिखते हैं। डीमंस कमेंट्रीज क्यों लिखते हैं? देखिए, उनको क्या करना होता है, जो डीमंस होते हैं वो भगवत गीता पे क्या हर श्लोक पे कुछ ना कुछ अपनी बात बताते हैं, फिर उसके बाद पूरा कंपाइल करने के बाद लिख देते हैं भगवत गीता ऊपर। क्यों? क्योंकि कृष्ण की भगवत गीता फेमस है, तो वो अपनी कमेंट्री दे देते हैं, तो कृष्ण का नाम यूज करके उनकी भगवत गीता की सेल ज्यादा होगी। यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। हाँ, लेकिन डिवोटी ये सब नहीं करते हैं। और जब कोई डिवोटी के द्वारा कोई कमेंट्री होती है, उसको जब कोई पढ़ता है, तो वास्तव में हृदय में परिवर्तन आता है और भगवत गीता वास्तविक उसको लाभ कर सकती है। और वही रियल होती है। जो डीमंस लोग भगवत गीता लिखते हैं वो तो यूजलेस है। वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कमेंट्री देते हैं ताकि वह उनकी बुक्स ज्यादा सेल आउट हो सके। बस इसीलिए भगवान का नाम भगवत गीता ऊपर लिख देते हैं और कुछ भी अगलम तिगलम लिख देंगे। तो ये चीज होती है। अब जैसे सीधे सीधे बताया गया गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्करु माम एवैषि सत्यम ते प्रतिजानी ही प्रियोसी में। भगवान अंत में गीता के बोलते हैं 18.66 में कि मन मना, हाँ, अपने मन में मेरा चिंतन करो, भव मद भक्तो, मेरे भक्त बनो, मदयाजी माम नमस्करो, मेरी पूजा करो, और मुझे नमस्कार करो, मेरे को शरणागत हो जाओ। शिला प्रभुपाद जी कैसे बोलते हैं? मन मना, भगवान के बारे में सोचो। माम मदयाजी, भगवान की क्या करो? भगवान की आरती प्लेट है, भगवान की आरती करो। हाँ, भगवत भक्तो, भगवान के भक्त बनो। हाँ, और भगवान को शरणागत हो जाओ। लेकिन जो अनस्क्रूपुलस कमेंटर्स होते हैं वह इस चीज को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ देते हैं। कैसे? अरे तुम ये अर्जुन और कृष्ण को गीता में छोड़ो, ये को साइड में रखो, आत्मा में विचार करो। वो इसी तरह से बोलते हैं और कहते हैं कि जब ये कृष्ण ये बोल रहे मन मना ममा, ये मम ये बोल रहे हैं, माम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या? ये कृष्ण अपने बारे में नहीं बोल रहे हैं,
इनके अंदर जो निराकार बैठा है ना, ये उसके बारे में बोल रहे हैं। ये भगवान ने कहाँ बोल दिया भाई? जब भगवान को ऐसा बोलना होता कि मेरी नहीं, मेरे निराकार की पूजा करो, तो भगवान बोल देते सीधा। लेकिन ऐसे अनस्क्रूपुलस कमेंटर्स होते हैं, ये लोग साइंस को खुआ देते हैं। तभी भगवान अपने द्वारा या अपने भक्तों के द्वारा इस चीज को पुनः स्थापित कराते हैं, राइट? क्योंकि वैदिक संस्कृति का मतलब क्या होता है? व्हाट डज वैदिक कल्चर मीन्स? इट मीन्स ए बी सी डी ई एफ जी। व्हाट इज दैट? सो ए मीन्स फॉर एब्सोल्यूट ट्रूथ, बी स्टैंड्स फॉर ब्राह्मणास, सी स्टैंड्स फॉर cow protection, D stands for demigods respect, E stands for etiquette, मतलब when we are etiquette मतलब सदाचार का पालन करते हैं एक दूसरे के साथ, F stands for fleeing into the lotus feet of Krishna, मतलब भगवान के चरणों का आश्रय लेना जब हम खतरे में हैं, राइट? पूरी तरह से लेना, लेकिन when we are helpless then we flee to the lotus feet of Krishna, F, and E stands for G stands for goodness, मतलब सत्वगुण का अनुशीलन करना। तो जब ये भंग होता है तो भगवान प्रकट होता है। दिस इज वैदिक कल्चर। ए एब्सोल्यूट ट्रूथ, एब्सोल्यूट ट्रूथ मीन थ्री थिंग्स, ब्रह्म, परमात्मा एंड भगवान, एंड बी स्टैंड्स फॉर ब्राह्मणास, सी स्टैंड्स फॉर काउ प्रोटेक्शन, डी स्टैंड्स फॉर demigod, like respecting demigods, and E stands for etiquette in dealing with other devotees, other people, other even other species, and following the etiquettes, respecting them. F stands for fleeing to the lotus feet of Krishna when we are in danger, and G goes to goodness. So whenever this is hampered, then Krishna comes, or his representative or his devotees comes. So that is why Krishna spoke this science to Arjuna 5,000 years back. So if we also want to be representative of Krishna, what we have to do? One very simple thing we have to do. Just we have to transparently transmit this transcendental knowledge to the other person. जब हम इस ज्ञान को यथारूप प्रस्तुत कर देते हैं, तो सामने वाले के हृदय में जो बैठे परमात्मा है, वह उसको प्रेरणा देते हैं कि इसकी बात सुनो और भक्ति के पथ का अनुशीलन करो। ये स्वतः होने लगता है। फिर आगे बताते हैं कि अर्जुन की ऐसी क्या योग्यता थी। भाई अर्जुन प्रश्न कर सकते हैं, तो आप मुझे क्यों बता रहे हैं? तो बताया जाता है कि अर्जुन की क्या योग्यता थी। तो कहते हैं सा एवं मया तेद्या योग प्रोक्ता पुरातनः भक्तो सी में सखा चेति रहस्यम ही तद उत्तमम। सा एवं मया तेद्या, टुडे आई टेल यू, सा एवं मैं, मया ते तुमको, अद्य आज, मी आई टुडे, सॉरी इसको ऐसे बोल सकते हैं, मी यू टुडे, इस प्रकार से। तो भगवान आज अर्जुन को कौन सा योग प्रोक्ता पुरातना, इस पुराने जो उन्होंने विवस्वान को ज्ञान दिया था, वह आज बोल रहे हैं। क्यों? भक्तों सी में सखा चेती। क्योंकि दो क्वालिटीज, दो कारण की वजह से, दो गुण थे अर्जुन के अंदर, जिसकी वजह से भगवान ज्ञान किसी ब्रह्मचारी को, किसी वानप्रस्थी को, किसी सन्यासी को या किसी ब्राह्मण को नहीं दिए। किसको दिए? एक क्षत्रिय को, वो भी गृहस्थ को। क्यों? भक्तों सी में सखा चेत, क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं और उनके मित्र हैं। इसलिए ये दिव्य ज्ञान, ये रहस्यमय ज्ञान भगवान अर्जुन को प्रस्तुत कर रहे हैं, अर्जुन को दे रहे हैं। तो टीचिंग ये इस प्रकार का आदान प्रदान, अर्जुन यहाँ पे एक स्टूडेंट की तरह है, शिष्य है, और कृष्ण यहाँ पे गुरु के समान है। तो ये इफेक्टिव कब होता है? गुरु और शिष्य का रिलेशन इफेक्टिव कब होता है? यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि स्पिरिचुअल साइंस का जो वास्तविक रेसिपिएंट होता है, उसकी योग्यता क्या होती है? कि वो भगवान का भक्त होना चाहिए। क्योंकि आसुरिक लोग इसको नहीं समझ सकते हैं, इसको बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो वास्तव में हम बड़े फॉर्चुनेट हैं कि हमको श्रीमद् भगवत गीता यथारूप सुनने को मिल रही, जो कि श्रीला प्रभुपाद जी ने कमेंट्री दी है, राइट? और उसको हम यथारूप समझ पा रहे हैं। दैट इज अवर ग्रेट फॉर्च्यून फॉर ऑल ऑफ अस। Only we have to, one point we have to understand, that we have to become a devotee of Krishna, and once that is there, then it becomes very easy.
सो आफ्टर हियरिंग दिस व्हाट हैपेंड, ये सुनने के बाद क्या हुआ कि अर्जुन थोड़ा जिज्ञासा करने लगे। जिज्ञासा नहीं, मतलब वह डाउट नहीं कर रहे थे, जस्ट ही वांटेड टू अंडरस्टैंड कि प्रभु कृष्णा, आपने ये बोला कि आपने ज्ञान सूर्य भगवान को दिया था, ठीक है, लेकिन आप तो मेरी उम्र के ही हैं। आप तो मेरी उम्र के ही हैं लगभग लगभग। तो सूर्य भगवान तो कितनी पुरानी बात है, ये तो मिलेनियम मिलेनियम पहले की बात है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आपने ये ज्ञान उनको कैसे दे दिया। आप जैसे कह रहे आई स्पोक दिस नॉलेज टू सन गॉड, ये कैसे हो सकता है? आपकी मेरी उम्र तो बराबर है, सूर्य भगवान तो बहुत बड़े हैं। तो देखिए, एक बात समझिएगा, बहुत इस पे थोड़ी सी गलत कमेंट्रीज आती हैं और इसकी सही कमेंट्री प्रभुपाद जी बताते हैं। अर्जुन यहाँ पे भगवान को चैलेंज नहीं कर रहे थे, कहीं से कह दिया सुबह से क्या कोई मिला नहीं क्या, मैं आप मुझे धोखा कैसे दे, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं मेरे साथ, ऐसा कुछ नहीं बोला उनको। सीधे सीधे क्या बताया कि उन्होंने इस प्रकार का प्रश्न क्यों किया, ताकि जो साधारण जन लोग हैं वो समझ सके। कभी कभी महान भक्त लोग बहुत ही सरल सरल प्रश्न करते हैं जो कि बिल्कुल उनके लेवल के नहीं है, लेकिन वो क्यों करते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए। तीसरे स्कंद में विदुर जी एक बात बोलते हैं। विदुर जी हालांकि डायरेक्टली कृष्ण के बारे में पूछ सकते थे, लेकिन वे क्या पूछते हैं मैत्र जी से? तो पूछते हैं कि सुखाया कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वाने दुपारमम वा, कि लोग सुख के लिए प्रयास करते हैं लेकिन उनको सुख तो नहीं प्राप्त होता, दुख और प्राप्त होता है, डिस्ट्रेस और प्राप्त हो जाता है। तो आप बताइए कि वास्तविक सोल्यूशन क्या है? तो वह किसके लिए पूछ रहे हैं? क्या वो कोई दुखी है? नहीं नहीं, वो तो कृष्ण लीला में हमेशा सदैव रमे रहते हैं, लेकिन वो किसके लिए प्रश्न करते हैं? हमारे जैसे लोगों के लिए। और यहाँ पे एक और चीज पता चल रही है, this shows the eagerness of Arjuna to understand Bhagavad Gita. So to the degree we are eager to understand about Krishna, Krishna reveals to us. अगर आतुरता नहीं है, तो जिसको हम कहते हैं लौल्यम, हाँ, जानने की आतुरता नहीं है, तब तक भगवान अपने आप को प्रकट नहीं करते हैं। जितनी मात्रा में आप है उतनी मात्रा में भगवान हो जाते हैं। तो दैट ईगरनेस हैज टू कम। और यहाँ पे भगवान ने कोई बात बोल दी, मैंने सन गॉड को ज्ञान दिया है, तो इस पे किसी भी प्रकार के कमेंट की जरूरत नहीं है, अपने आप में प्रमाणिक है। भक्त तो ऐसे होते हैं, भगवान की बातों को प्रूफ नहीं करना होता है, भगवान ने जो बोल दिया वही प्रूफ है। लेकिन अर्जुन यहाँ जो प्रश्न कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? हम जैसे लोगों के समझने के लिए, कि हम इस बात को समझ पाए। तो भगवान इस बात का अब उत्तर देंगे। अब इसमें एक और एंगल को मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि देखिए, शास्त्र जैसे वेद इत्यादि होते हैं, ये अपने आप में प्रूफ होते हैं, इन पे डाउट नहीं करना चाहिए, इन पे किसी प्रकार का भी संशय नहीं करना चाहिए। जैसे इस दुनिया में किसी इंसान का अगर मल हो, उसको अपवित्र बोला जाता है। मल मूत्र जो हो उसको अपवित्र बोला जाता है, और ये सही बात है। लेकिन एक गाय का गोबर जो होता है, गाय का मूत्र जो होता है, वह पूरी तरह से पवित्र होता है। अब हम इस बात को समझ नहीं सकते, लेकिन आप सब लोग ने अपने परिवार में देखा होगा, नहीं तो आपने अन्य लोगों को देखा होगा, कि गाय के गोबर को लोग, जैसे किसी व्यक्ति को अगर ऑल्टर में जाना है, भगवान के मंदिर कमरे में जाना है, तो जब वो मल मूत्र त्यागता है तो उसको स्नान करना पड़ता है, प्रॉपर सारे प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस करके आना पड़ता है, उसके बाद वो ऑल्टर में या मंदिर के प्रांगण में घुस सकता है। लेकिन लेकिन गाय का जो गोबर है, गाय का जो मूत्र है, वो ऑल्टर के अंदर जाता है, भगवान के स्नान के लिए इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि वेदों में वर्णित है कि ये पूरी तरह से पवित्र है। तो सोचिए, जिस प्राणी का मल मूत्र इतना पवित्र है, तो वो खुद में कितना पवित्र होगा। एंड और आज भी अब साइंटिस्ट लोग, पहले इसको नहीं समझते, अब समझने लगे कि नहीं, गाय के मल और गाय के गोबर और मूत्र में बहुत सारे एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। वे खुद अब इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं। पहले लोग बोलते थे कि पेड़ मरे हो, पेड़ के अंदर जान नहीं होती।
फिर जगदीश चंद्र बोस जी ने उसको प्रूफ किया था कि यस, प्लांट्स आल्सो हैव लाइफ, और प्लांट्स हैव लाइफ ये शास्त्र में पहले से ही वर्णित था। और बहुत साल बाद 1940 में इतनी रिसर्च करने के बाद 1969 समवेयर अराउंड दैट इनको फिर प्रूफ हुआ, 1940 में इनको ये प्रूफ किया कि हाँ इनमें जान होती है। और हमारे शास्त्रों में कितने साल पहले, वेदों में कितने साल पहले ही लिख दिया गया है। इवन माँ के गर्भ के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, हर महीने क्या क्या चेंजेस होते हैं श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में लिखा हुआ है। वही चेक कराए गए एक एनाटॉमी के व्यक्ति से, तो उसने बताया, गायनेकोलॉजिस्ट से सॉरी, तो उसने भी बताया कि हाँ जो आपके इस शास्त्र में जो लिखा हुआ है भागवत में एज इट इज यही चेंजेस होते हैं। उनने जो भागवत में लिखा है उसको देखा तो ही वाज आल्सो शॉक्ड कि सब कुछ मैच कर रहा है। आप अगर किसी की हड्डी है कभी भी अपने घर में नहीं रखेंगे, छुएंगे नहीं उसको, लेकिन एक हड्डी होती है जिसको भगवान के ऑल्टर में रखा जाए, जिसको हम शंख कहते हैं, क्योंकि वेदों में उसको प्रामाणिकता दी गई है। तो वेद का प्रूफ क्या है? वेद खुद। तो वेद हमारी माँ के समान है। तो जैसे कि एक बच्चे को यह जानना है कि उसके पिता कौन है, तो वो किससे पूछता है? अपनी माँ से। तो उसी प्रकार से अगर हमको जानना है कि हमारे पिता कौन है, तो वो तरीका क्या है? वेद। और वेद क्या बताते हैं? ईश्वरः परमा कृष्ण, दैट आवर फादर इज सुप्रीम कंट्रोलर इज कृष्णा। So Ved tell us about that. So this has to be understood from this point. So today, just in essence, till this shloka, what we understand that Krishna is telling that the saintly the जो kings हैं, राज ऋषि हैं, उन्होंने इस अव्यय ज्ञान को भगवान के माध्यम से सुना, परंपरा में सुना, राइट। और जो कि भगवान से शुरू हुई, भगवान ने ज्ञान विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, एंड सो ऑन। लेकिन समय के प्रभाव में क्या हुआ कि जो परंपरा थी वह टूट गई और ये जो दिव्य ज्ञान था वह खोता हुआ नजर आ रहा था। और क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं, भगवान के मित्र हैं, इसलिए ये पौराणिक और गुह्य ये विज्ञान है भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन का संशय उठा कि आपने विवस्वान जी को कैसे दे दिया? आप तो मेरे उम्र के लगभग बराबर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने ज्ञान उनको कैसे दे दिया। तो इसका उत्तर भगवान क्या देते हैं, हम इसको कल देखेंगे। सो डज एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? Maybe I can take one question today. Okay, I hope no one has any question. So, okay, so can you type whatever is your question? Okay, go ahead. I think so one person has a question. So you may type your question on this and I'll read that and answer that. Meanwhile, I just wanted to tell you one very important point. That is why I conclude the class a little early. See, the purpose of all this is to help us to chant the Hare Krishna Mahamantra. So I just want from all of you, not only I want, Krishna says in Bhagavad Gita that Yajnanam Japa Yagyosmi. As I told you that we should do yajna, we should do sacrifice for the pleasure of Vishnu. So what is the yajna recommended? The question is, sir, why God is not end all devil in one time? Okay, let's take this question. भगवान सारे दुष्ट लोगों को एक साथ क्यों नहीं खत्म कर देते? देखिए, मुख्यतर चीज क्या है? We have to understand that God has given us one very important thing, that is free will. Maybe you can see the questions and you can let me know. God has given us free will. हम सबको भगवान ने एक अल्प स्वाधीनता दी है क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। तो क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं इसलिए उन्होंने हमको अल्प स्वाधीनता दे रखी है। जैसे कि हमने आपको बताया है, किसी लड़की को अगर ये कहेगी तुम मुझको प्रेम करो सर पे बंदूक रख के, तो वो
बोल देगी, आई लव यू बोल देगी, लेकिन वहां पे तो बोल देगी वो, लेकिन बाद में हम जानते हैं कि वो प्रेम नहीं करती उसको, क्योंकि वो फोर्स में बोल रही है। तो उसी प्रकार से what we have to understand, Krishna respects everyone's free will. Whatever free will is there, Krishna has given free will to everyone, and Krishna respects everyone's decision. So if one wants to go through a, like, go with a mentality or doing actions which are not according to the laws of Krishna, which are not according to the laws uh, of a ethical human society, then what does Krishna do? That whatever he does, जो भी वह कार्य करता है उसके हिसाब से उसको भुगतना पड़ता है। जैसे वो अच्छा करता है उसको अच्छा प्राप्त होता है, बुरा करता है तो बुरा प्राप्त होता है। देखिए, कोई व्यक्ति गलत काम क्यों करता है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक कारण तो ये होता है व्यक्ति अज्ञान में है, और दूसरा वह इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो कर रहा है, वरना वो ऐसे कार्य कभी ना करे। तो जब व्यक्ति इस प्रकार से करता रहता है और फिर उसको यह समझ में आता है कि नहीं नहीं, इन सब से मुझे सुख नहीं मिल रहा है, तो वो एक समय बाद रुक जाता है जब वो किसी सेंटली व्यक्ति से मिलता है। Nobody is a bad person, it's just that he's associating with bad. So when he comes in association with good, then he gets transformed. So Krishna basically respects everyone's free will, and whatever actions he does, whether he uses the free will or misuses the free will, he has to face the consequences. So in that way Krishna remains detached. जैसे कि भगवान सब पे समान कृपा कर रहे हैं, लेकिन कौन किस हिसाब से ले रहा है ये निर्भर करता है। जैसे कि बारिश होती है तो कहीं नीम का बीज पड़ा है, कहीं आम का बीज पड़ा है, कहीं कोई और फल का बीज पड़ा हुआ है। तो जब पानी गिरेगा तो जहां नीम का बीज है वहां नीम का पेड़ उगेगा, जहां आम का बीज है वहां आम का पेड़ उगेगा। तो जिस प्रकार से व्यक्ति की इच्छाएं हैं भगवान उसके साथ आदान प्रदान करते हैं, राइट। तो भगवान, अगर कोई भगवान को याद करना चाहता है तो भगवान सारी व्यवस्था बना देते हैं कि जिससे कि वह व्यक्ति भगवान को याद कर सके। लेकिन अगर जो व्यक्ति भगवान को भूलना चाहता है तो भगवान सारी व्यवस्था बना देते हैं कि वो भगवान को भूल जाए। क्यों? ये यथामाम अभी हम देखेंगे, चौथे अध्याय का 11वां श्लोक ही है। हम जैसी मात्रा में भगवान के प्रति हम शरणागत होते हैं, भगवान उसी मात्रा में हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। So everything is what we desire, and Krishna reciprocates in that way. So if someone wants to be a devil, Krishna reciprocates in that way, and if somebody wants to be a devotee, Krishna reciprocates in that way, because he loves us. I hope it answers your question. So what is the solution? That you approach to those people and you try to give them that transcendental knowledge, through that their hearts can be transformed. Only by, and Krishna consciousness, Krishna भावनामृत इस प्रकार के ये इतनी विशेष चीज है कि जैसे कोई व्यक्ति भगवान के संपर्क में आएगा परिवर्तन निश्चित है। Okay, what is the next question? What is the truth? Truth, what is truth? Truth means which never gets changed, which never gets changed. Neither time, neither place, neither circumstance can change something that is truth. मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो एक समान रहता है उसको सत्य बोलते हैं, दैट इज ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोक्ष प्राप्ति क्या व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है? देखिए, 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। प्रश्न ये है, मोक्ष प्राप्ति क्या व्यक्तिगत धर्म से ऊपर है? तो 5 प्रकार के मोक्ष होते हैं। मोक्ष का मतलब क्या होता है, या मुक्ति का मतलब क्या होता है? हम इस संसार में फंसे हुए हैं। ये संसार को क्या बोला जाता है? भवसागर। भव मतलब होना, होना मतलब बूढ़ा होना, बीमार होना, मृत्यु होना, हाँ, जन्म होना। तो भव मतलब होना। तो ये संसार जो है, संस्कृति संसार जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। अब देखिए, हम एकदम छोटे थे, फिर थोड़े बड़े हुए, अब युवा हो गए, फिर हम और बड़े होंगे, फिर उसके बाद हमारा शरीर धीरे धीरे लड़खड़ाने लगेगा,
फिर हम बूढ़े हो जाएंगे और एक दिन मर जाएंगे। ये 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। तो लगातार परिवर्तन, संतति थी संसार जो लगातार परिवर्तित होता रहता है। और संसार को भगवान गीता में कहते हैं दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है और अशाश्वत है, मतलब इट्स टेम्परेरी एंड फुल ऑफ मिजरीज। तो ये जगत हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। हम we are not human beings, we are spiritual beings having human experience. We are not human beings having spiritual experience. We are actually spiritual beings, and spiritual beings belong to the spiritual world. So we belong to the spiritual world, so we must go to spiritual world. We can be only happy there, just like a fish can only be happy in water, in river, sea, so forth. Similarly, we can be only happy in spiritual world. So moksha means to get out of this material world and go back to our spiritual world, right? And going there and serving Krishna, the Supreme Personality of Godhead. तो मनुष्य का धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षचे। तो जैसे कि व्यक्तिगत धर्म की बात की है, धर्म तो समझिए। देखिए, आपको किसी व्यक्ति ने कह दिया, किसी कम्युनिटी ने कोई बात कह दी, उसको नहीं मान लेना चाहिए। किसको मानना चाहिए? जो शास्त्र कहता है, क्योंकि शास्त्र अपौरुषेय है। अपौरुषेय मतलब आपके मेरे जैसे व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं। क्योंकि हमारे अंदर 4 कमियां होती हैं। क्या? हमारी इंद्रियां सीमित हैं, हम दूसरों को धोखा देते हैं, हम गलतियां करते हैं और हम माया में रहते हैं। ये 4 कमियां हैं। टू कमिट मिस्टेक्स, चीटिंग प्रोपेंसिटी, इम्परफेक्ट सेंसेस एंड टू बी इल्यूजन। ये 4 कमियां हमारे अंदर है। लेकिन शास्त्र अपौरुषेय है, ये आपके मेरे जैसे पुरुष ने नहीं लिखे। तो वो क्या कह रहे हैं? सवै पुंसा, सारी इंसानियत के लिए, पुंसा सारी इंसानियत के लिए, परमो धर्म, सबसे बड़ा धर्म क्या है? यथो भक्तिर अधोक्षजे, भगवान अधोक्षज की भक्ति करना। और कैसी भक्ति? अहेतु की, अप्रतिहता, बिना किसी गुप्त उद्देश्य के, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान अधोक्षज को प्रसन्न करना है, कृष्ण को प्रसन्न करना है, अप्रतिहता, लगातार करना है। ये आत्मा सुप्रसिद्धि। और उसका परिणाम क्या होगा? व्यक्ति पूर्ण तरह से प्रसन्न रहेगा, संतुष्टि का हृदय में अनुभव करेगा। तो यही धर्म है। तो भगवान की भक्ति करना, बल्कि जब व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है तो उसको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा भी नहीं होती। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भगवतार भक्ति रहे तो की। तो कहते हैं ना धनम, धन नहीं चाहिए, ना जन्म, आई डोंट वांट फॉलोअर्स, ना सुंदरीम मतलब मुझे कोई सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविताम व जगदीश कामे, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनि, मैं जन्म 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 जन्मांतर तक क्या करूं? भवताद भक्तिर, आपकी भक्ति। कैसी? अहेतु की, बिना किसी गुप्त उद्देश्य के। तो शास्त्रास should be our basis, not any person. I'm not criticizing anyone, but as I told you, just like a tripod is there, so tripod जो होता है, it is standing on 3 legs. So spirituality is also standing on 3 legs: sadhu, guru, shastra. So if a sadhu person, some saintly person is saying something, on what basis? Shastras. So what is the paro dharma for all of us? What is the dharma? To render devotional service. That is the point. Any other question? मूर्ति पूजा सही है? ये तो आपने एकदम वही प्रश्न कर दिया जो कि अर्जुन करते हैं। प्रश्न ये है कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है? अर्जुन सीधा बोलते हैं। अर्जुन 12वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बोलते हैं कि हे प्रभु, कौन परफेक्ट है? क्वेश्चन समझिएगा, हु इज परफेक्ट? पहला, वह व्यक्ति जो आपकी पूजा करता है आपके साकार रूप में, अ पर्सनलिस्ट डिवोटी हु ऑलवेज वर्शिप यू, भक्तस्त्वाम पर्युपासते। कौन परफेक्ट आप बताइएगा? दूसरा, कौन? जो आपके निराकार ब्रह्म पे ध्यान करता है। सीधा प्रश्न है अर्जुन का, आप चेक कर सकते हैं, भगवत गीता 12वां अध्याय प्रथम श्लोक। तो पहला क्या पूछ रहे हैं कि कौन व्यक्ति परफेक्ट है आपके हिसाब से, योगों को जानने वाला है और वह आपको जल्दी प्राप्त कर लेता है? तो पहला पूछते, पहला जो आपके साकार रूप की पूजा कर रहा है, आपके विग्रह रूप की पूजा कर रहा है। दूसरा, आपके निराकार रूप में ध्यान कर रहा है।
आपके निराकार अव्यक्त ब्रह्म पे ध्यान कर रहा है वो। भगवान क्या कह रहे हैं कि मैया आवेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेत परायोपेतास ते में युक्तात्मतः। क्या बोल रहे हैं? जो अपना मन मेरे रूप में लगाते हैं, सीधा बोल रहे हैं, मई आवेश मनो ये माम, मेरे रूप में लगाते हैं जो अपना रूप, और नित्य युक्त उपासते, जो हमेशा मेरी पूजा करते हैं और इच्छा करते हैं मेरा संग करने की, श्रद्धया पर्युपेतास, और वह श्रद्धा के साथ भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, ते में युक्तात्मतः, वह मेरे हिसाब से, मेरे नहीं, भगवान श्री कृष्ण के हिसाब से क्या कहते हैं? युक्त तमतः, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है। तो ना आपकी बात मानिए ना आप मेरी बात मानिए, भगवान सीधे क्या बोल रहे हैं हमें ये रखना है। श्रील प्रभुपाद जी के सामने एक व्यक्ति आया था, आर्य समाज का था, और प्रभुपाद जी से पूछते हैं कि प्रभुपाद, स्वामी जी भगवान खाते हैं? प्रभुपाद ने कहा हाँ खाते हैं। नहीं, आपको क्यों लगता है भगवान खाते हैं? हाँ, क्योंकि भगवान कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मतलब? कहते भगवान गीता में कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयो मे भक्तया तदहं भक्ति उपृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि जो मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा पानी, फल, थोड़ा एक फल खिलाता है तो मैं उसे खाता हूं। तो भगवान, मैं तो भाई थर्ड, प्रभुपाद इस तरह से, मैं तो थर्ड पार्टी, मुझे नहीं पता। हाँ, तो मैं तुम्हारे जैसे मूर्ख की बात मानूं कि भगवान की बात? मैं तो थर्ड पार्टी, मुझे नहीं पता। तो उसी प्रकार से मूर्ति पूजा, बहुत लोग इसका खंडन करते हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं हमको ये समझना है। भगवान क्या कह रहे हैं? मई आवेश मनो ये माम युक्त युक्ता उपासते, जो अपना मन मेरे पर्सनल फॉर्म में, मां मुझ में लगाते हैं और हमेशा मेरी पूजा करते हैं और मेरा संग करने की इच्छा रखते, ते में युक्त तमामतः आर कंसिडर्ड बाय मी टू बी द मोस्ट परफेक्ट। और ऐसे व्यक्ति भगवान को जल्दी प्राप्त करते हैं। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Maybe one last question we can take. Please be fast. Being a Hindu, it is obvious to be totally devoted to Lord Krishna, but seeing any... Being a Hindu, it is very obvious to be devoted to Lord Krishna. But seeing and going through other religion books, more approachable and appealable things are seen. So how can we say that only Srimad Bhagavad Gita defines God? Okay. See, there are actually, I basically told something about this in my previous classes. Understand one very important thing. There are religions, different religions: Christianity, Buddhism, Jainism, Sikhism, Muslim, Islam, Hinduism. All these isms are there. But you have to understand, which is the very important teaching of Bhagavad Gita, the ABCD of Bhagavad Gita, that you are not this body, you are the spirit soul. So when you are spirit soul, who is Hindu? Who is Muslim? Who is Christian? Is soul Hindu? Is soul Christian? Is soul Jainism? क्या आत्मा ये सब होती है? और हम हैं कौन? That we have to understand. See, today the world is fighting on these basis only. तुम काले, मैं गोरा, तुम अमेरिकन, मैं इंडियन, तुम ऑस्ट्रेलियन, मैं पाकिस्तानी, हाँ, तुम हिंदू, मैं मुस्लिम, तुम मोटे, मैं पतला। यही चीज की लड़ाइयां हो रही हैं। क्यों? People are having one very important disease, one very contagious disease, skin disease. Not that means they are suffering from some rashes and all. Skin disease means that, oh, you are black in color, how can I be with you? This is the problem. We don't understand that we belong to the supreme personality of God, and we are soul. The other person standing in front of me, or he's a soul. The plant which is there in my house, he has a soul. The animal which is going here and there, he has a soul. So we all are soul. And soul is connected to Krishna, and he has a
he has a role towards Krishna. So if I consider about the other dharmas, so अनेक धर्मों में हाँ लोगों की विभिन्न प्रकार की चेतना है, लोगों की विभिन्न प्रकार की चेतना है, तो उस चेतना के आधार पे क्या होता है कि उनकी चेतना के आधार पे विभिन्न लोग प्रकट हुए। जैसे जीसस खुद कहते थे आई एम द सन ऑफ गॉड, मोहम्मद कहते थे आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो वह लोग क्यों आए? क्योंकि उस समय जैसे कि कोई बच्चा है, उसको अगर एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाया जाए, कैसे सिखाया जाता है? जैसे उसको बोला जाए 4 - 2, तो 4 वो पेंसिल रखेगा, 1 2 3 4, अब 2 हटा दिया, तो हाँ 4 - 2 मतलब 2। अब उससे कह दिया जाए 2 - 4, तो कहेगा 2 डंडी में 4 डंडी कैसे हटाऊं? उसको ही दिक्कत हो जाएगी कि छोटा बच्चा है। लेकिन अगर वो 10th के बच्चे से पूछो 2 - 4, -2 उसके लिए आंसर सिंपल है। तो जो व्यक्ति जिस कॉन्शियसनेस में है, जिस चेतना में जितना वो समझ सकता है, उसके लिए उतना ज्ञान उसको प्रस्तुत कर दिया जाता है। अब जैसे कुरान में एक बात लिखी है कि वन शुड नॉट हैव इलिसिट सेक्स विथ हिज ओन मदर। तो अब किसी व्यक्ति की इतनी ऐसी चेतना है कि ये भी कार्य नहीं करना चाहिए, तो उसको रोका जाता है कि धीरे धीरे एलिवेट करेंगे, क्लास 1 से क्लास 2, क्लास 2 से क्लास 4, इस प्रकार से। अगर डायरेक्टली उनको लाने का प्रयास किया जाएगा, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर देम। और जीसस क्राइस्ट एक बात बोले थे कि मैं तुमको बहुत कुछ बताना चाहता हूं, लेकिन मैं तुमको बता नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अभी तुम लोग तैयार नहीं। तो इसी से हमको पता चल गया कि दिस बुक इज नॉट कंप्लीट। एंड व्हाट डज कृष्ण सेज इन भगवद गीता? कि सीधे सीधे भगवान से गीता में बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। दिस इज राज विद्या, द किंग ऑफ ऑल नॉलेज। Whatever knowledge you can find on entire planet, Bhagavad Gita is the king of all knowledge. Bhagavad Gita 9.2, Krishna tells directly, Raj Vidya Raj Guhyam. It is the king of all knowledge. And after listening this Gita, nothing else need to be known. कुछ और भी जानने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्य हम सुन सकते हैं, लेकिन हमको कंप्लीट ज्ञान नहीं मिलेगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते, कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे क्रिश्चियन बनिए। अगर आपको पता है भगवान कहाँ है, भगवान क्या करते हैं, भगवान का जगह स्थान क्या है, भगवान को कैसे प्रेम किया जाता है, हाँ भगवान का निवास स्थान क्या है, अगर आपको इन सबके प्रश्न का पता है, तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो आप करिए। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज द अल्टीमेट कंक्लूजन। सो वन शुड, क्योंकि भगवान भी इस चीज को कहते हैं, बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत सारे जन्मों के बाद ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वास्तविक ज्ञानी क्या होता है? मेरी शरण में आता है। और वो क्या समझता है? वासुदेव सर्वमति, भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा व्यक्ति बड़ा ही रेयर है। सो ओनली रेयर पीपल अडॉप्ट टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। एंड माय डियर फ्रेंड, we are neither Hindu, neither Muslim. We are souls and we belong to not Hindu dharma, Muslim dharma. We belong to the Sanatan dharma because we are Sanatan, we are Satchidanand, and we belong to the Satchidanand. That we have to understand. Okay, so I will like to stop here. It's about a very interactive session. I was very happy after hearing your questions. So the point is that we should chant the Hare Krishna Mahamantra. I will ask all the devotees that every day put a habit of chanting the holy name at least 21 times on your fingers. How can you do that? I'll show you once by doing 3 times. So just try to hear me. You have to focus your mind on the holy name. Do this kind of meditation. It will be helpful in your studies, helpful in your focusing on anything, and help you to transform in your heart, and ultimately help you to achieve the love for Godhead. So to the degree you are like eager to have love for Godhead, you will try to increase the number of times you are chanting the holy name. So at least begin with 21 times. How can we do that? Try to wake up early in the morning. Every day in the morning, what you should do, you should try to chant 21 times. Before bath, after bath, depends on you. हाँ, there's no rule, क्योंकि भगवान का नाम पूरी तरह से पूर्ण शुद्ध
नित्य मुक्त अभिन्नात्म नाम नामिनो, भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं और पूरी तरह से शुद्ध है। हमारी अशुद्ध अवस्था से नाम अशुद्ध नहीं हो जाएगा। दैट वी हैव टू, वी डोंट हैव टू बी fear like we don't have to fear of. So what is the way? I will show you 3 times. Please do it 21 times daily, and please follow this for 1 month. Read every day 2 pages of Bhagavad Gita or 2 shlokas of Bhagavad Gita. You will see, definitely you see transformation. You have tried so many things in your life. Try this also at least once in your life. So how can you do that? Just try to sit straight. If possible, try to make your eyes closed, and try to hear each and every word of the mantra very clearly. How can we do that? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So at least this chanting of Hare Krishna Mahamantra, do 21 times daily, and you can even follow the ABCD, somehow associate with the devotees, come for daily classes, and do book reading and chanting of Hare Krishna Mahamantra, and if possible, try to take Krishna Prasad. And then definitely your life will be transformed for sure. So many people have tried, they have made their life successful. You can also do that. Just follow the path which Prabhupada has taught all of us. So thank you all very much. Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bol.